ایک مرتبہ پھر بنا پاکستانیوں کی آواز کوٹ ادو میں لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے مزدور نذیر کی خودکشی کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے وزیر مملکت شبیر علی قریشی نے مزدور کے اہل خانہ کو 3 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا چیک دیا۔ متوفی نذیر کے خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک بڑا مختلف اور ایک ریفریشنگ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا جب آپ کو منسٹری ملی کہ یہ جو ایک ڈورمنٹ منسٹری پڑی ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ جو چیز ایک قوم کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ اس کے وسائل نہیں، یعنی تیل کے ذخیرے بیٹھے ہوں تو قوم پروگریس نہیں کرتی، ہیرے ہوں، سونا آپ کی زمین سے نکلے پھر بھی قومیں نہیں آگے بڑھتی، کیونکہ اگر بڑھتی ہوتی تو آج کانگو ایک بڑی امیر قوم بنی ہوتی، نائجیریا ایک دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہوتی، اور بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں۔ جو ایک قوم کو جو کوالٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں وہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے انگریزی کا جو لفظ، ایک قوم اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جب بلیو کرتی ہے وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف بڑھتا جاتا ہے، وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انوینسیبل بن جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چھوٹا ایک برطانیہ اتنا سا ذخیرہ ساری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کے اندر کیا تھی، کون سی کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں۔ اور اسی طرح جب آپ اپنی تاریخ دیکھیں اسلام کی تو یہ ایک کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا فنومنا نہیں آیا، ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں 622 میں 622 اے ڈی میں، اور مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا پہلے 5 سال، خطرہ تھا کہ وہ کمیونٹی ختم ہی ہو جاتی، ایک جنگ جیتے بدر کی 313 لوگ تھے 624 میں 624، اس کے بعد مشکل سے بچے اگلی 2 جنگوں میں، اور پھر 636 میں مدینہ کے پہنچنے کے 14 سال بعد وہ جو ایک سپر پاور ہے رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں، اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشین ایمپائر، وہ ہارتا ہے کٹسیا میں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد وہ دنیا اسپین سے لے کے 50 سال کے بعد اسپین سے لے کے تقریباً ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ یہ میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں بار بار اس فنومینا کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا، اور وہ جو ماڈل تھا مدینہ کا، اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سیویلائزیشن قائم ہوا اگلے 600 سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا، لیڈنگ سیویلائزیشن تھا، سائنسز میں سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ تو وہ جو ماڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا، اور اس لیے یہ ہمیں جب
हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आती थी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, लेकिन सुन्नत पे इसलिए चलो कि वो अगर इंसान उस पे चलता है तो वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन जाता है। और वो जो स्टेट थी मदीना की, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे उस स्टेट के, अगर आप उन पे चलो तो आपकी कौम ऊपर आ जाती है। जब भी मुसलमानों की अगर आप तारीख पढ़ें तो रिवाइवल आई है, तो हमेशा कोशिश की गई है उन असूलों को अडॉप्ट करो जो असूल थे मदीना की रियासत में। तो जो सबसे बड़ा असूल था वहां एक सेल्फ बिलीफ आ गया था। वो अपने आप को अंदर बिलीव करने लग गए थे। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ेन की लिमिटेशंस हैं, जो गुलामी है, उससे आजाद कर दिया था। ये जो जिसको इलामा इकबाल कहते हैं, जो शाहीन था, मर्द मोमन की बात करते हैं, वो एक आजाद इंसान होता है। वो ही सिर्फ दुनिया में ऊपर जा सकता है सबसे। उसके लिए एक ज़हन चाहिए होता है जो बिलीव करता है कि कोई भी चीज हो तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये जो क्वालिटी होती है, इससे एक इंसान अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप करता है। अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया था तो उसने जब फरिश्तों को कहा था कि इसके सामने झुको, तो जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसको क्या पावर दी है, इसके नॉलेज क्या दी है। तो वो जो नॉलेज है वो डिस्कवर कैसे करता है इंसान, वो कभी भी एक गुलाम ज़हन नहीं डिस्कवर कर सकता जो सिर्फ डिपेंड करता है कि जी अच्छा बाहर से इंपोर्ट आ जाएगी या बाहर से नॉलेज आ जाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो ज़हन आगे नहीं बढ़ सकता। ज़हन आगे वो बढ़ता है जो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हमारी जो मुल्क की जो अगर मैं ये समझूं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह ये बढ़ा था एक वक्त पे 60s में, पाकिस्तानी जो दुनिया में व्यू किए जाते थे, जो पाकिस्तानी के अंदर भी सेल्फ बिलीफ आता जा रहा था, वो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपना रास्ता खो बैठे। वो जो सेल्फ बिलीफ था वो प्रोपेल कर रहा था इस मुल्क को, जिसके ऊपर प्रेडिक्शंस करते थे कि पाकिस्तान कैलिफोर्निया बनेगा एशिया का, सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती कि हमारे अंदर ये जो सेल्फ बिलीफ आना था वो नहीं आया। जो सबसे एक चीज प्लीज याद रखना कि जो हम आर्ग्यूमेंट सुनते हैं जी कलोनियलिज्म आई और उन्होंने लोगों को एजुकेट कर दिया, हिंदुस्तान में अगर ना आती तो हम पता नहीं पीछे चले जाते या अंग्रेज की गुलामी ना होती। कलोनियलिज्म का जो सबसे बड़ा एक कौम के ऊपर नुकसान करती है वो गुलामी, वो इंसान को जो जब आप आज़ाद भी हो जाते हैं लेकिन ज़हनी गुलामी रह जाती है। मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में टेस्ट खेलने गया, मैं 18 साल का था, तो मुझे याद है हमारे सीनियर प्लेयर हमें कहते हैं कि देखें अंग्रेज से जीतना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर हम इज्जत से हार गए तो हमारी यही जीत होगी। हमारे अपने सीनियर प्लेयर ही कह रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ, हम जो मैच जीतने लगते थे, हम वो कहते थे, वो एक्सप्रेशन आता था कि वी स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हम अपने अंदर ही नहीं मानते थे कि हम जीत सकते हैं। जब आप शुरू में कहें कि जी इनसे आप जीत ही नहीं सकते तो आप जीतेंगे कैसे। सो वो जो ये जो अभी भी कॉम्प्लेक्स हमें पड़ा हुआ था कि वो हमारे से वो बड़े सुपीरियर हैं और उनकी टेक्निक ऐसी है, और वो जब तक वो कॉम्प्लेक्स रहा हम नहीं जीत सके थे। जब इवेंचुअली जीतना शुरू किया तो उस अपने उस ज़हन को आज़ाद किया। तो यही जब मैंने शौकत खानम का फैसला किया बनाने के लिए, तो मैं जिससे कहूं कि जी पाकिस्तान में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके मुख्तलिफ चीज़ें थी, डॉक्टर्स चाहिए, उसकी इक्विपमेंट है, बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगी क्योंकि डायग्नोस्टिक और फिर जो ट्रीटमेंट की इक्विपमेंट है वो बड़ी महंगी है, उनकी मशीनें बड़ी सेंसिटिव हैं, और फिर हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, और सारी चीज़ें मैं सुनता था। क्योंकि जी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, वो नहीं बना सकी तो आप कैसे बनाएंगे। और जब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन गया
फिर हमने फैसला किया हम रिसर्च करेंगे, कैंसर सिंपोजियम किया हमने, इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। शुरू में हमारे बड़े थोड़े से लोग आए, जो अब हमारे कैंसर सिंपोजियम होता है इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। कितने हैं फैसल? हजारों में दुनिया से लोग आते हैं और हम पेपर्स पब्लिश करते हैं हर साल, जो कि इंटरनेशनली दुनिया में जाते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसने 2-3 चीजें हमारे मुल्क में सामने लेके आई। एक कि अगर दुनिया में डिमांड हो वेंटिलेटर्स की तो हर चीज आप जरूरी नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। और अब सोचना शुरू किया, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा, कि कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना। मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। और फिर बाकी जितने भी सैनिटाइजर्स, ये सारी डिसइंफेक्टेंट्स, ये यानी एक 22 करोड़ के लोग अवाम, कैसे हो सकता है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज हमारा जो माइंडसेट था अब तक, वो माइंडसेट से हम नहीं निकल पा रहे। एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जो होगा जी वो हमारे से आगे हैं, तो उनसे ही हम वो जो हमें नॉलेज देते रहेंगे वो हम लेंगे। हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं आया। और हम जो दूसरी सेकंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि तालीम पे नहीं पैसा खर्च किया, रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि हम ये सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। हमारे वही पाकिस्तानी यहां से बाहर जाते हैं और वो हर चीज में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वजह है? अगर वो सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के अंदर हमारे लोग जाके एक्सेल कर सकते हैं, तो वो यहां सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते? और वो इसलिए नहीं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी रूलिंग एलीट के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम। एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीजों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहां बनाएंगे। दूसरी चीज, क्या चीज सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके। खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। तो इससे दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं, हमने अपने अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इसके ऊपर जोर लगाना है कि आगे कोई इस तरह की चीज आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप। और ये जो सेकंड चीज है, जब तक कि हमारे मुल्क के, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहां नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी आंखों के सामने डिटीरिएट हुए हैं। मैं पैदा हुआ था मेयो हॉस्पिटल में, मेरी सारी बहनें पैदा हुई थी। शुरू में जब भी कोई खेलते हुए कोई चोट लगती थी, टांके लगाने मेयो हॉस्पिटल जाया करते थे। और अब पैसे वाले लोग सोचते भी नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर अच्छा इलाज करवाना है वहां करवाओ, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये फिर तीसरी चीज सामने आई है, कोरोना की तीसरी चीज क्या सामने आई है। अब तक ये होता रहा कि जनाब गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। मेल न्यूट्रिशन 25% बच्चों को है, फिक्र नहीं, गरीब का बच्चा है।
40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है, किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो अब हमें क्या नजर आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी, वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिंगापुर ने क्या किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लॉकडाउन कर दिया और जनाब कर्व उनकी फ्लैट हो गई। उसके बाद लॉकडाउन खोला, एकदम कोरोना फिर फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि वो जो सबसे उनके गरीब इमिग्रेंट वर्कर्स थे, जो 6-6, 7-7 एक कमरे में थे, उनकी उन्होंने फिक्र नहीं की जब लॉकडाउन किया हुआ था, तो उनके अंदर से वो फैल गई सारी, फिर से उनको अब लॉकडाउन करना पड़ा। तो इसलिए हमें भी जब फैसले करेंगे पाकिस्तान के अब से, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का वो तबका जो कमजोर तबका है, जो कच्ची बस्तियों में है, जो हर रोज फेस करता है, हर दूसरे दिन मौत देखता है, उसके बच्चों का देखता है कि हाल के गंदे पानी की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, या वो देखता है कि ये हेपेटाइटिस सी हर जगह फैली हुई है, लिवर खराब हो रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं। तो उन लोगों को हम आज कह रहे हैं कि जनाब कोरोना आ गई है तो अब बंद हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। पहले वो डिस्टेंसिंग कैसे करें? 6-6, 7-7 एक कमरे में, और कह जी हाथ धो, साफ पी, वहां पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है। सो इसलिए मुल्क आगे जब बढ़ता है, सो मैं वाइंड अप कर रहा हूं कि जब मुल्क बढ़ता है तो एक मुल्क एज ए होल बढ़ता है, एक एलीट ऊपर नहीं जाती। ये जो हमारा एलीटिस्ट कल्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से सारा डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी है, बिकॉज जो हमारी एलीट थी वो इतनी मुतासिर थी मगरब से कि वो सोचती नहीं थी कि हम कभी उनसे मुकाबला करेंगे, तो हर चीज इंपोर्ट करते रहो। ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी मुल्क को खड़ा करेंगे। ये सोचा ही नहीं कि अगर एलीट के हालात अच्छे हैं तो वो सोचा ही नहीं कि आम आदमी के हालात कैसे हैं। और कभी भी एक अमीरों का जजीरा जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना ने साबित किया। 30 साल पहले चाइना क्या था? आप 30 साल पहले चाइना जाते, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो आज जिधर वो पहुंच गया। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर लेके आए। जब नीचे से लोगों को ऊपर लेके आए, मुल्क भी ऊपर चला गया। हमारा ये है जो आगे हमने जाना है, जो कोरोना ने हमें चीज क्या सामने लेके आई कि सबसे पहले अपने पांव पे खड़ा होना है, अपने मुल्क में ये चीजें प्रोड्यूस करनी, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है, अपने हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी वहां जो भी चीजें वो इनोवेट होती हैं, चीजें जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, सारी आती हैं उनकी जो डिफेंस है उसकी कनेक्शन है प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो फीड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। सारी इनोवेशंस और नई चीजें और इन्वेंशंस इस तरह आगे आती हैं, इस तरह उनका मुल्क ऊपर जाता है। हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था डिफेंस प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह ये जो आगे का कोर्स हम जिस तरफ जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम अब इंश्योर करेंगे जितनी भी हमारी रिसोर्सेज, पहले तो 1-1.5 साल तो सर्वाइवल में ही गुजर गया, अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने में लग गया, डिफॉल्ट से बचाने में लग गया। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक विजन चार्ट आउट करें अपने मुल्क की, कि हमने आगे जो जाना है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो मुल्क की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एक पूरी विजन बने हमारी, जो हम उसके ऊपर पूरे लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह कौम को एक पूरी विजन देंगे।
اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی, وہ سارے ملک کے لیے ہوگی. اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں, ہماری غریبوں کی بستیاں, ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی, ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور اس کے اندر کی یہ لانگ ٹرم پلاننگ. یہ جو ایک ملک چلتا ہے شارٹ ٹرمزم کے اوپر, وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ایک ویژن, اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف. جب ایک قوم بلیو کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا, یہ جو ہمارا پروگریس ہے, اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی, تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا, ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے, اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے, ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہے. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں, وہ ان میں سے ایک تو روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا, کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی, ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا, ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا, اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے, ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے, وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے, جس طرح شوکت خانم تھا, شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ تھے جو کینسر ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے, جس کے اندر ایک قانون ہے, رول آف لا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا, اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں, جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل, سب باہر سے آئے ہیں, باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں, وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہے. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا سکتے ہیں, جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوا ہے باہر کوالٹی لوگوں کا, پروفیشنلز کا. اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئیں گے. میں آخر میں فواد چودھری آپ کو پھر سے, زبیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں, اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچا, یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فارورڈ ہے. یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے. تھینک یو. وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب قوم خود پر اعتماد کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہی آگے بڑھ سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے. خود اعتمادی لوگوں کو مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے قابل بناتی ہے. مزید کہا کہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی میں پوٹینشل ہے, کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے.